Bismillahirrahmanirrahim. Students, this lecture is being delivered by Inamullah Chokhtai, and we are starting our new topic, that is fluid dynamics. Basically, we are starting our new chapter of the book on physics, that is chapter number 6 of the fluid dynamics. So let's start our chapter, fluid dynamics. And before starting our discussion, we will just have to discuss or talk about some contents or the key points that we will keep in mind, and we have to discuss these points in our lecture. Among these, first of all, is the fluid dynamics. The next one is the viscosity that we will have to discuss. Then we will talk about the drag force, the Stokes law, and the most important of all is the terminal velocity, because we have to define, we have to explain, and we have to derive the relation of the terminal velocity. This is much more important regarding examination point of view, because for many years it is being asked as the long question for the 5 marks. So that's why the terminal velocity is much more important as a long question as well. Then we will have to discuss streamline flow, and then we will talk about the turbulent flow and ideal fluids. So first of all, because we have to define the term fluid dynamics, and I will like to discuss in the two terms separately, the fluid and the dynamics. Of we will have to talk about what is a fluid. तो स्टूडेंट्स, जब आपके सामने फ्लूइड का लफ्ज बोला जाता है तो आपकी क्या सेंस बिल्डअप होती है, क्या समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है? तो हम ये एज्यूम करते हैं, समझते हैं कि movement of the liquids is generally referred as the flow. मतलब जब हमारे सामने फ्लो का वर्ड बोला जाएगा तो हम क्या समझेंगे, फ्लो क्या होता है? तो मूवमेंट्स ऑफ द लिक्विड्स बेसिकली फ्लो समझी जाती है. फ्लो के साथ हमारा ये कंसेप्ट है कि लिक्विड मूव कर रहे होंगे. सो इसी लिहाज से बेसिकली फ्लो इज द कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ फ्लूइड्स behave and how they interact with their surrounding environments. The water is moving through the channel or the pipe or over surfaces, then how the water would be behaving or interacting there. This is the concept that we have to study in the flow. So anything that can flow is called fluid. That may be liquid, that may be a gas, that may be the plasma, etc. Anything that can flow is called the fluid. याद रखिएगा, जो फ्लो कर सकती है, भले वो लिक्विड है, भले वो गैस है, प्लाज्मा है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं. नेक्स्ट हमें डायनामिक्स के हवाले से बात करनी है. डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स के हवाले से हम ऑलरेडी कंसेप्ट रखते हैं कि ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, द मोशन ऑफ द बॉडीज को स्टडी करते हैं, और इसमें मोशन के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स को भी शामिल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब ब्रांच ऑफ द डायनामिक्स, के हम फैक्टर्स और फोर्सेस के हवाले से बात करें जो कि उसकी मोशन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो हम डिफाइन करते हैं dynamics को. Dynamics is a sub branch of the mechanics which deals with the study of the motion of the object with or without the influence of the factors which may influence the motion of the body. For example, the mass, the force, momentum, energy, etc. These are the factors which can affect the motion of the body if they are acting. So depending upon these factors, dynamics is further divided into two sub divisions. Number one, the kinematics and the kinetics. काइनेमैटिक्स बेसिकली ये डायनामिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जस्ट मोशन को स्टडी करते हैं. आवर कंसर्न इज only with the motion of the body. We have nothing to do with the factors which may influence the forces which may influence the motion of the body. And the second one, जब हम बात करते हैं kinetics की, तो kinetics में we have to discuss the motion of the body along with the forces and the factors which may influence the motion of that object. So next we have to define the basic term on which we are talking about the what is the fluid dynamics. Basically fluid dynamics से मिलके बनता है fluid और dynamics. हम जानते हैं fluid क्या होता है, anything that can flow is called fluid, और dynamics का मतलब क्या होता है, the study of the physics or the mechanics which
is concerned, which is studying the motion of the bodies, is called the dynamics. So literal meaning fluid dynamics के क्या बनते हैं? जो literal meaning बनते हैं fluid dynamics के वो ये है कि ये study of the fluids है in motion. Means जब fluid flow कर रहे होते हैं, जैसे वो हवा move करती है, या जैसे 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 liquid move कर रहा हो, जैसे कोई और liquid move कर रहा हो, जब आप उनको स्टडी करते हैं, उनकी बिहेवियर्स को, उनके इंटरेक्शंस को, तो ये फ्लूइड डायनामिक्स कहलाता है. In physics and engineering, fluid dynamics is the subdiscipline of the fluid mechanics. याद रखिएगा, fluid dynamics fluid mechanics की एक सब ब्रांच है, और fluid dynamics में हम डिस्क्राइब करते हैं फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स को. द फ्लूइड्स में भी लिक्विड और द गैसेस हम पहले बात कर चुके हैं. इट हैज़ सेवरल सब डिसिप्लिन्स. फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से बात की जा रही है कि फ्लूइड डायनामिक्स के बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स हैं, इंक्लूडिंग द एरो डायनामिक्स एंड द हाइड्रोडायनामिक्स. एरोडायनामिक्स की तो हम स्टडी करते हैं एयर ऑफ द एयर और अदर गैसेस को which are in motion, which are in flow, means when they are moving. और जब हम बात करते हैं हाइड्रोडायनामिक्स की तो हमारा कंसर्न होता है द स्टडी ऑफ द लिक्विड्स इन मोशन. द अदर ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच, पहली ब्रांच हमने डिस्कस की है फ्लूइड डायनामिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स की जो दूसरी ब्रांच है वो at rest. Students, next we will have to talk about the viscosity. First of all, we will talk about the etymology of the viscosity. The word viscosity is derived from the Latin word viscum, which means viscous, glue. Means ये viscum से लिया गया है, Latin word है, और इस Latin word का मतलब होता है viscous, the glue, anything like this. और जब हम इसको डिफाइन करेंगे viscosity, तो हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. हमारी बुक में दो तरह से सेंटेंसेस जो है ना वो बोले गए हैं. नंबर वन, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स. Frictional effect between the layers is called viscosity, and number two is the basically is a measure of the force that is required to drag one layer over the other layer. याद रखिएगा viscosity को हमारी बुक में दो sentences में दो लिहाज से यहाँ पे डिफाइन किया गया है. एक सेंस ये यूज की गई है कि viscosity बेसिकली एक फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड्स, और दूसरी जगह पे इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज़ अ मेजर बेसिकली ऑफ द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग वन लेयर ओवर द अनदर लेयर. दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी. इट इज प्रेजेंटेड बाय यूनिट्स के हवाले से बात करते हैं. न्यूटन किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड. also expressed in an equivalent forms of the Pascal second. और यहाँ पे अगेन एग्जांपल्स के हवाले से वर्ड यूज़ किया गया है या दिखा गया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वो विस्कस होते हैं, वो गाढ़े होते हैं. तो बेसिकली जो विस्कोसिटी है वो बेसिकली हमें लिक्विड्स के बारे में बताता है कि वो गाढ़े हैं या पतले हैं. तो जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो गाढ़े होंगे, और जहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू बहुत कम होगी वो पतले होंगे. मीन सब्सटेंसेस flow easily like water and they are having the small value of the coefficient of viscosity, and the substances such as honey and the tar etc, they are having the large value of the coefficient of viscosity. At the end ये एनिमेशन है, यहाँ पर फ्लो को देखिए, ये लेस विस्कस मोर विस्कस फ्लूइड्स के हवाले से बताया गया है. इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा थिक है, कौन सा थिन है एटसेट्रा, और कहाँ पे जो है वो फ्लो इजी होगा और कहाँ पे फ्लो जो है वो अ लिटिल बिट टफ होगा. तो हनी और जो था या tar type substances, they are viscous, in the water or anything else like this they are less viscous. Basically एनिमेशन में आपको विस्कोसिटी के हवाले से कंसेप्ट दिया जा रहा है. Next we will have to talk about the drag force. Drag force क्या होता है? ड्रैग फोर्स ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से, किसी मीडियम में से, किसी पानी में से, हवा में से, किसी भी चीज़ में से कोई फ्लूइड कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो मूव करते वक्त वो एक रिटार्डिंग अपोजिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. इसकी रिटार्डिंग अपोजिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मरतबा एक्सपीरियंस कर चुके होंगे. जैसे आप सपोज अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में सपोज चल रही है, और गाड़ी की खिड़की से अगर आप हाथ बाहर निकालें तो बाहर की हवा आपके हाथ पे अच्छी खासी काम करती हुई आपको फील होगी, और आप उसे थोड़ा सा अपर टिल्ट करें तो हवा आपके हाथ को अपवर्ड या डाउनवर्ड उसको
मूव कर सकती है। इसी तरह अगर आप बोटिंग कर रहे हों और उसी दौरान अगर आप पानी में अपने हाथ को डालें तो पानी जो है वो अपने आपके हाथ पे एक फोर्स लगाता है। तो हमारा ड्रैग फोर्स के हवाले से कंसेप्ट क्या बन गया कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से, भले वो हवा हो या लिक्विड हो, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में से मूव करवाया जाता है तो वो मीडियम उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उसकी मूवमेंट के खिलाफ एक फोर्स लगेगी और इस अपोजिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। An object moving through a fluid experiences a retarding force that is called drag force. The drag force increases as the speed of the object increases. जितनी velocity बढ़ती चली जाएगी उतना drag force का effect होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। Examples में net aerodynamic or the hydrodynamic forces acting on the aircraft and the boats moving through the air or the water respectively etc. इनकी examples हो सकती हैं। In the physics of the sport, especially the drag force is necessary to explain the performance of the runners, particularly of the sprinters. Next, we will have to talk about the Stokes law. Stokes law क्या होता है? Stokes law basically जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा होता है, जिस तरह हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया, रेड कलर की एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि एक फ्लूइड में से सपोज वो मूव कर रहा है, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है और वो ऑब्जेक्ट जो रिटार्डिंग फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स व्हेनेवर द बॉडी मूव्स थ्रू द फ्लूइड it experiences riding an opposing force which we call the drag force, and the magnitude of this drag force basically is being calculated by the Stokes law. Drag force के magnitude को हम Stokes law से calculate कर सकते हैं। Stokes law की statement क्या बनती है? Stokes law क्या कहता है? Stokes law के मुताबिक if a body of a radius r is moving through the fluid of the viscosity eta, and if the body is having the velocity v, then the body would be experiencing a drag force, would be experiencing an opposing force whose magnitude is given by this expression, that is F is equal to 6 pi eta v. When a sphere of radius r is moving with the velocity v through a liquid of the viscosity eta, then the drag force acting on the sphere can be written as 6 pi eta r v. In this expression, F is the frictional force acting on the interface between the fluid and the particle, means F is the force that is acting on that object that is moving through the fluid. Eta is the viscosity of the medium. R is the radius of the spherical object that is moving through the fluid, and V is the relative velocity of the object. So what are the factors which may affect the value of the drag force? According to equation, we are having the three factors that may be eta, that may be r, or that may be the velocity v of the object. So regarding these, the factors which may affect the drag force, number one is the viscosity of the medium, means the more viscous medium would pose more force on the body. जितना viscosity ज़्यादा होगी उतना जो है वो drag force की वैल्यू ज़्यादा होगी। Again, जितना radius of the body that is moving through the fluid ज़्यादा होगा उतना इसका drag force ज़्यादा होगी, और जितना velocity की वैल्यू ज़्यादा होती है drag force की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। Next we will have to talk about the terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम है जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट को, जैसे कि कोई फॉग हो सकता है, फॉग पार्टिकल या ड्रॉपलेट एटसेट्रा, एंड दैट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इनिशियली जब ये फॉग ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट जब नीचे गिरता है तो ये अपनी वेलोसिटी को गेन करता है। जब गेन करता है तो ग्रेविटी एक अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर काम करती है जो उसको अपवर्ड पुश करती है। इस डायग्राम में भी आपको ये कंसेप्ट दिया गया है कि the fog droplet, your water droplet basically is moving downward due to its weight because it is acting vertically downward, and the drag force of the air that moves on this droplet, and it pushes the droplet upward. So initially ये अपनी velocity को gain करता है। जब velocity को gain करता है, velocity बढ़ती है। अभी हमने पीछे देखा कि velocity बढ़ने के साथ साथ drag force की वैल्यू भी बढ़ती है, तो drag force की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस, ड्रैग फोर्स अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड,
बराबर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस वक्त ये ड्रॉपलेट जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये ड्रॉपलेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। Consider a water droplet such as that of fog falling vertically. The air drag on the droplet increases with the speed. The droplet accelerates rapidly under the overpowering force of gravity which pulls the droplet downward. जहाँ तक हमने ये कंसेप्ट लिया कि जो ड्रॉपलेट है वो डाउनवर्ड गिरता है और अपनी रफ्तार को बढ़ाता है ड्यू टू दी ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गो ऑन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो वेलोसिटी के साथ साथ अपवर्ड जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी बढ़ेगी। However, the upward drag force on the droplet also increases as the speed of the droplet increases. So the time comes when the drag force becomes equal to the weight, and it moves downward with a slow, uniform, constant velocity. In this condition, अगर हम देखें तो नेट फोर्स क्या होगी जो ड्रॉपलेट के ऊपर काम कर रही होगी, वो होगा उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस, मींस वेट माइनस ड्रैग फोर्स. As net force is equal to 0, so weight becomes equal to the drag force, so it moves downward with a constant velocity, and this constant speed is said to be the terminal velocity. Examples drops की है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे. इसके बाद stupidity and moist of the tiny oil droplets etc. could be quoted as the examples of the terminal velocity. Next, we have to derive the relation of the terminal velocity. To find the terminal velocity, v in this case, we use Stokes' law for the drag force. Drop, we have weight is equal to the drag force. इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारे पास वेट एंड ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हैं. वेट डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स अपवर्ड, देन इट मूव्स डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो वेट को ड्रैग फोर्स के बराबर कर दिया. वेट इज इक्वल टू mg और ड्रैग फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई rvt. अब बात करते हैं मैस के हवाले से. तो मैस क्या होता है? मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम. सो मैस होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी को हम कैसे जाहिर करते हैं? डेंसिटी को हम जो है वो रो से जाहिर करते हैं. ये हमारी डेंसिटी है. और किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए जो वॉल्यूम होता है, स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है. ये स्फेरिकल बॉडी के लिए है. लिहाजा मैस का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या बन जाएगा? रो. दिस वन इज द रो एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द spherical body. So mass is equal to 4/3 by r cube. Putting this value of the mass in this equation, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब. ये मैस की वैल्यू हो गई. उसके बाद हम g लिखेंगे. ये मैस की वैल्यू ये हमने यहाँ पे दिखाई है और g को हम एज इट इज यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो ये हमारे पास 6 पाई ईटा rvt एक्सप्रेशन वैसे आ जाएगा. इस इक्वेशन को आप जब सिंपलीफाई करेंगे terminal velocity is equal to 2 rho g r square over 9 eta. Next, we will have to talk about the streamline or the laminar flow. A flow is said to be streamline or the laminar if every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which pass that point. हर एक पार्टिकल स्ट्रीमलाइन में एक ख़ास रास्ते पे मूव कर सकता है, एक डेफिनेट ट्रैक पे मूव कर रहा होता है. अपनी रास्ते, अपने पोजीशन, अपने पॉइंट को चेंज नहीं करता. और वो जिस रास्ते पर चल रहा होता है उस रास्ते पर उससे पहले बहुत सारे पार्टिकल्स जा चुके होते हैं और वो उनके रास्ते को, ट्रैक को वो फॉलो कर रहा होता है. मतलब हर एक पार्टिकल ऐसे पॉइंट से गुजरेगा जिस पॉइंट पर उससे पहले बहुत सारे पॉइंट्स गुजर चुके होंगे. वो उनके रास्ते को फॉलो करेगा, उनके रास्ते पे चलेगा और उसी रास्ते, उसी ट्रैक को वो फॉलो करेगा, उसकी डायरेक्शन को नहीं बदलेगा. द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और द लैमिनार इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which passed that point earlier. What are the attributes or the characters of the streamline flow? इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो पाथ है वो बहुत स्मूथ होगा और उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. In this case, each particle of the fluid moves along the smooth path, and that is called the streamline. The difference
द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि वो अपने ट्रैक पे चल रहे हैं जो कि उनके लिहाज से स्पेसिफिक है, और उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे उससे पहले उनके अर्लियर पार्टिकल्स जो है ना वो जा चुके होते हैं, लिहाजा वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज condition, and the direction of the streamline is the same as the direction of the velocity of the fluid at that point. Streamlines की directions आपको यहाँ पे जो लाइन दिखाई गई हैं, हम इन्हें assume कर सकते हैं streamlines, इनकी direction velocity की direction में होती है. Turbulent flow क्या होता है? The irregular and unsteady flow of the fluid is called the turbulent flow. Streamline को अगर हम simple word में डिफाइन करना चाहें तो हम इन दो वर्ड्स को रिवर्स कर सकते हैं, इरेगुलर और अनस्टेडी. मीन्स जब हम बात करते हैं टर्बुलेंट की तो हम बात करेंगे इरेगुलर और साथ में अनस्टेडी की बात करेंगे. लेकिन अगर हम इन्हीं दो वर्ड्स को यूज़ करते लैमिनर फ्लो के लिए तो हम कहते हैं रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो, मतलब इसको हम उलट कर देते. तो टर्बुलेंट फ्लो में हम कहते हैं द इरेगुलर एंड द अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो, जो कि हमें एक डायग्राम में यहाँ पे जो है ना वो दिखाया गया है. और आप जान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्योटिक कंडीशन है, एक अफरा तफरी वाली कंडीशन है जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो में डिस्क्राइब करते हैं. Characteristics or the attributes of the turbulent flow. First of all, above a certain velocity of the fluid flow, the motion of the fluid becomes unsteady and irregular. मतलब एक certain limit है velocity की जहाँ पे आपका फ्लूइड आपको लैमिनर फ्लो देता है. अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद वो लैमिनर जो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा. सेकेंड चीज़, अंडर दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस एब्रप्टली, कि वेलोसिटी में एक एब्रप्ट चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा एक सडन चेंज आएगा और डिफरेंट डायरेक्शंस पे वेलोसिटी जो होगी वो बदल रही होगी रिगार्डिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. उसके मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ों में एक एब्रप्ट चेंज आएगा. इन दिस केस एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द followed by the particles, exact path followed by the particles cannot be predicted. आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पार्टिकल्स जो है ना वो नेक्स्ट किस तरह मूव करेंगे. इस सारे को स्टडी करने का स्पेशली टर्बुलेंस के हवाले से इसकी क्या इंपॉर्टेंस बनती है? इसकी इंपॉर्टेंस बनती है स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से, इंजीनियरिंग फील्ड के हवाले से, और वो भी बिलखसूस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के हवाले से, क्योंकि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में हम उन पार्टिकल्स की, मीडियम्स की या न्यूक्लियर पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं. मींस हम उस किस्म के फ्लो की बात कर रहे हैं जिसमें जो टर्बुलेंट का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. इस तरह जो एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है जिसमें एक जो कि अनस्टेडी होता है, जो कि इरेगुलर होता है, वो बहुत सारे एनालिसिस को समझना बहुत मुश्किल बना देता है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये जो टर्बुलेंट है वो बेसिकली अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में से है क्लासिकल मैथमेटिकल फिजिक्स में. डिटेल नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो इज इम्पॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग because most industrial flows, especially those in the nuclear engineering, are turbulent. Unfortunately, the highly intermittent and irregular character of the turbulence complicates all analysis. In fact, turbulence is often said to be the last unsolved problem in the classical mathematical physics. Turbulence के इफेक्ट को समझाने के लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का इमेज दिखाया है, और इसमें आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं होते जिनको फॉलो किया जा रहा होता है, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती. और ये जो डायग्राम है बेसिकली हमें टर्बुलेंट कैरेक्टर को या टर्बुलेंस के हवाले से जो है वो एक इमेज प्रोवाइड करती है. इसी तरह अगर हम स्मोक के हवाले से बात करते हैं तो स्मोक के जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो भी इरेगुलर होती है, अनस्टेडी होती है, और उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा होता. तो ये दो इमेजेस हैं बेसिकली जिसको टर्बुलेंट फ्लो के हवाले से कंसेप्ट देने के लिए यूज़ किया गया है. आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आइडियल फ्लूइड्स नहीं होते हैं. लेकिन जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं आइडियल फ्लूइड्स का तो बेसिकली हम कुछ कंसीडर कर रहे होते हैं. मींस कि अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो और उसके कंडीशंस को चेंज किया जाए तो वो फ्लूइड किस तरीके से बिहेव करेगा, हमें ये कंसिडरेशन अचीव करने में, हमें उसके बारे में समझने में, मींस उस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हमें मदद मिलती है. आइडियल फ्लूइड्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट बट समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू consider what would happen to an ideal fluid in a particular fluid
flow problem just in order to simplify the problem. मतलब उसको just आसान करने के लिए हम ये समझते हैं कि what would happen to the ideal fluid, उस ideal fluid के साथ क्या होगा, what would happen to the ideal fluid in an particular fluid flow, just to simplify that flow problem. So we can understand many features of the fluids and motion. Many features को आप समझ सकते हैं fluids के जो कि motion में हों, by considering the behavior of the fluids which satisfies the following conditions. Means अगर fluids following conditions रखते हैं, means ideal behavior रखते हैं, तो हम उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, उनके फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं. उनमें सबसे पहली बात तो यह है कि फ्लूइड इज द नॉन विस्कस. नॉन विस्कस का मतलब क्या है? देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. वो नॉन विस्कस नहीं है, मींस उसमें रिटार्डिंग फोर्स नहीं होगी, उसमें फोर्स का कंसेप्ट दैट वाज रिक्वायर्ड टू ड्रैग वन लेयर ओवर द अदर लेयर वो नहीं होगा, या फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी बिटवीन द लेयर्स नहीं होगा. तो नॉन विस्कस का मतलब ये है no internal frictional forces between the layers. Second चीज, the fluid is incompressible. Incompressible का मतलब ये होता है कि उसकी डेंसिटी जो होती है at each point जो है वो एक जैसी रहती है. Density is a constant. The fluids are incompressible and the fluid motion is steady. तो ये तीन concepts हैं ideal fluids के हवाले से. Ideal fluids के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि अगर हमारा फ्लूइड इस किस्म की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा हो तो उनके बहुत सारे फीचर्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. That is the end of this topic, students. Thanks. Stay blessed. Allah Hafiz.